নমস্কার, আমি স্বপন। ইভিএম নিউজে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে এই মুহূর্তের একটি বিষয়, একদম অন্য বিষয়, আমি থোড়া হাটকে একটা বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হলাম। আমার এক বন্ধু, তার রিকোয়েস্ট, সে একটি ভিডিও পাঠিয়েছে, একজন জ্যোতিষীর ভিডিও পাঠিয়েছেন। জ্যোতিষ তার নাম হচ্ছেন, তার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় নেই, কিন্তু তিনিও আমাদের কাছে রিকোয়েস্ট করেছেন, মুকেশ ভাটজি, তিনি আমাদের কাছে রিকোয়েস্ট করেছেন যে আমি মমতা ব্যানার্জি সম্পর্কে একটা প্রেডিক্ট করেছেন। মমতা ব্যানার্জির কুষ্টি এই সমস্ত কিছু তার কাছে আছেন, এই যে জ্যোতিষদের তাদের এই প্রেডিকশন করার জন্য যা যা লাগে সেই তথ্য তার কাছে আছে। অভিষেক ব্যানার্জিরটা নেই, ফলে অভিষেক ব্যানার্জিটা তিনি বলতে পারেননি, কিন্তু এই সংক্রান্ত অভিষেক ব্যানার্জির যে বিষয়গুলো সেগুলো এসছে এর মধ্যে। কিন্তু মূলত মমতা ব্যানার্জি সংক্রান্ত তিনি একটা প্রেডিকশন দিয়েছেন। আমরা যদিও জানি এই প্রেডিকশন নিয়ে অনেক মহলে অনেক প্রশ্ন আছে, জিজ্ঞাসা থাকে, বহু মানুষের এর সত্যাসত্য নিয়েও মানুষের মধ্যে প্রশ্ন থাকে, কিন্তু সত্ত্বেও আমরা এটা জানি, আমরা যারা সমাজের মধ্যে বাস করি, সমাজবদ্ধ যারা জীব, তারা প্রত্যেকে জানি যে প্রায় আমাদের দেশের, আমাদের সমাজের শতকরা 96% মানুষ, তারও বেশি হলে হয়তো ভুল বলবো না, যারা জ্যোতিষ চর্চায় জ্যোতিষীর কাছে কখনো না কোনোভাবে গেছেন, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের কাছ থেকে কোনো রকম এই সংক্রান্ত, ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত কি হতে পারে এরকম একটা জেনেছেন বা জানার উৎসাহ বা আগ্রহ দেখিয়েছেন। এটা কিন্তু সকলেরই মধ্যে থাকে, আছেও। ফলে আমরা এই মুকেশ ভাটজি, তিনি একটি ভিডিও করেছেন, সেই ভিডিওটা আমরা দেখাবো আপনাদেরকে আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে, যে তিনি মমতা ব্যানার্জি সংক্রান্ত, আগামী দিনে মমতা ব্যানার্জি কি ঘটতে চলেছেন এই সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি একটা ডিটেল করেছেন। আমি আমার সমস্ত দর্শক বন্ধুদের বলবো এই ভিডিওটা আপনারা একদম শেষ পর্যন্ত দেখুন। ভিডিওটা শেষ দেখার পর এ সম্পর্কে, সত্যাসত্য সম্পর্কে দায়িত্ব মুকেশ ভাটজি, তিনি এই প্রেডিকশন করেছেন। এবং এই গোটা ঘটনাটার রাজনৈতিক তার কি তাৎপর্য আছে সেটা যদি আপনারা কেউ প্রশ্ন করেন, আমি বলবো রাজনৈতিকগতভাবে এটা তাৎপর্য নেই, কিন্তু তিনি যে প্রেডিকশনগুলো করেছেন আর আমরা যে রাজনৈতিক বিশ্লেষণগুলো করি তার অনেকটা কাছাকাছি দিয়ে যায়, আপনারা সেটা শুনলেই বুঝতে পারবেন। এইটুকু বলে আমি আপাতত আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, আপনারা ভিডিওটা দেখুন। নমস্কার। नमस्कार, आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, पिछले कुछ महीनों में यदि सबसे ज्यादा बार कोई प्रश्न मुझसे पूछा गया है तो वो है ममता बनर्जी एवं पश्चिम बंगाल की उनकी सरकार के विषय में। आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। उनके वर्तमान सरकार के भविष्य के बारे में तो हम बात करेंगे ही, साथ ही मैं ममता बनर्जी के बारे में कुछ आप लोगों को अजीब लग सकता है ऐसे प्रिडिक्शंस भी देने वाला हूं। तो यह छोटा सा वीडियो है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे वीडियोज यदि आपको अच्छे लगते हैं और किसी वजह से आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल जाया करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को, और विशेषकर जो लोग भी गुजरात महाराष्ट्र में रहने वाले हैं, उन लोगों को श्रावण की शुभकामनाएं। आज से ही उन लोगों के लिए श्रावण की शुरुआत हुई है। बिना ज्यादा समय वेस्ट किए हुए मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज किए हैं इस प्रिडिक्शन को वर्कआउट करने के लिए। सबसे पहले तो ऑब्वियसली तृणमूल कांग्रेस की कुंडली देखी गई है। ममता बनर्जी का जो कुंडली उपलब्ध है नेट पर, उसको देखा गया है। साथ ही एक प्रश्न कुंडली और उसका जमक्कुल चार्ट, इन चारों चीजों को देखकर हम आज के इस प्रिडिक्शन को करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के स्क्रीन पर जो प्रश्न चार्ट है वो दिखा रहा हूं। कन्या लग्न राइजिंग है और सिर्फ 0 डिग्रीज 48 मिनट्स का लग्न है, यानी कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र राइजिंग है। द्विस्वभाव लग्न यदि 15 डिग्री से कम का हो तो उसके पहले की राशि को हम लोग देखते हैं, तो यहां पर हम लोग सिंह राशि को भी कंसिडर करेंगे लग्न के रूप में। सेकंड हाउस में केतु है, 6th हाउस में वक्री सैटर्न है, 8th हाउस में जुपिटर और राहु हैं,
10th हाउस में पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा है, 11th में सूर्य और बुध हैं और 12th हाउस में शुक्र और मंगल है। फ्रेंड्स, इस कुंडली में बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। सबसे पहला पॉजिटिव तो ये है, जब सिंह को आप लेंगे, क्योंकि 1 डिग्री से भी कम का लग्न है, तो सिंह एक स्थिर राशि है, तो ममता बनर्जी की सरकार को स्थिरता दे रहा है ये लग्न। दूसरे, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है और इसमें एक लीनियंसी होता है, इसमें एक हेल्पफुल एटीट्यूड होता है, हेल्प देना और हेल्प लेना भी, ये भी बहुत अच्छा है। तीसरा चीज आप देखिए, लग्न लॉर्ड बुध 11th हाउस में बैठे हुए हैं, ये बहुत बढ़िया इंडिकेशन है। चौथा चीज, चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में है, पुनर्वसु एक बहुत ही अच्छा नक्षत्र है, सूर्य भी 11th में है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव्स को यदि देखिएगा तो नक्षत्र राइजिंग के जो स्वामी हैं सूर्य, वो 12th लॉर्ड भी हैं और सिर्फ 0 डिग्रीज के हैं। दूसरा नेगेटिव देखिएगा, किसी भी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप में 4th और 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस हाउस के लॉर्ड जुपिटर एक तो राहु के साथ बैठे हुए हैं और दूसरे वो 8वें हाउस में बैठे हुए हैं, और जुपिटर के जो डिस्पोजिटर हैं मंगल, वो 12th में बैठे हैं। पॉजिटिव में एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव है, चंद्रमा और बुध का एक परिवर्तन। बुध यहां पर 1st हाउस के लॉर्ड तो हैं ही, 10th हाउस के भी लॉर्ड है। तो फ्रेंड्स, यदि मुझसे पूछिएगा कि एक लाइन में यह सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों को वजन करके जब देखते हैं तो पॉजिटिव्स ज्यादा भारी दिखता है, यानी कि इस सरकार के गिरने की संभावना कम बनती है। सबसे पहले तो स्थिर लगन, दूसरा लग्न लॉर्ड के अच्छे पोजीशन में होना, तीसरा चंद्रमा के पुनर्वसु नक्षत्र में होना, ये सारे अच्छे पॉइंट्स हैं। लेकिन नेगेटिव्स भी हैं। मैं कहूंगा 70% यदि पॉजिटिव्स हैं तो 30% नेगेटिव्स भी हैं। प्रोबेबिलिटी में मैं ये कह सकता हूं कि सरकार नहीं गिरेगी, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र राइजिंग है, इसलिए इनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं से मदद भी मिल जाएगा। हो सकता है कि केंद्र सरकार भी परोक्ष रूप से मदद कर दे, इस सरकार को नहीं गिराए। वो जानबूझकर तो नहीं करेंगे, लेकिन जो नक्षत्र राइजिंग है उससे ऐसा लगता है कि उनके मन में भी डाउट्स होगा या डर होगा और वो ये काम नहीं करेंगे। और अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, यदि ये सरकार को गिरना है तो पीरियड्स इन ग्रहों को देखकर क्या निकलता है। जून से इस सरकार के लिए एक बुरा समय शुरू हुआ है और अक्टूबर तक रहेगा, यानी कि जून 2023 से लेकर अक्टूबर 2023 तक इस गवर्नमेंट के लिए मुश्किल समय है। इससे आगे बढ़ते हुए 2024 में भी मई के बाद एक विंडो आएगा 4 महीनों का, जिसमें इस सरकार के गिरने की संभावना बनेगी। लेकिन अब रियल पेंच है इस प्रेडिक्शन का, जो मैंने कहा था शुरू में कि आप लोगों को अजीब भी लग सकता है। यदि इस सरकार को गिरा दिया गया तो यह ममता बनर्जी के लिए अच्छा होगा। आप लोग कह सकते हैं यह कैसा प्रेडिक्शन है। देखिए फ्रेंड्स, चंद्रमा पुनर्वसु में है। यदि ममता बनर्जी के सरकार को गिराया जाता है तो ये फिर से उठकर खड़ी हो जाएंगी, इनको पूरा सिंपैथी मिलेगा और इनका पॉलिटिकल कैरियर कुछ वर्षों के लिए और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यदि इस सरकार को नहीं गिराया जाता है और कंटिन्यू करने दिया जाता है तो ममता बनर्जी के लिए बहुत कठिनाइयां आगे आएंगी और स्लो डेथ जिसको कहते हैं,
ये धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होंगी और उनका खात्मा कोई और नहीं करेगा बल्कि वो स्वयं करेंगी। मैं जिन पॉजिटिव्स की बात कर रहा था उन्हीं में नेगेटिव्स भी निहित है। बुध के लिए मैंने कहा कि बहुत अच्छा है, एक परिवर्तन है 10th और 11th का, लेकिन बुध देखिएगा तो अश्लेषा नक्षत्र में है उनका अपना नक्षत्र, लेकिन अश्लेषा बहुत अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता। बुध को नवमांश में देखिएगा तो 12th हाउस में चले जाते हैं। दशमांश में देखिएगा तो बुध हैं तो 4th हाउस में, लेकिन व्यय अंश में है, मतलब ऐसी राशि में दशमांश में बैठे हुए हैं जो उनकी लग्न कुंडली का 12th हाउस है। सूर्य 0 डिग्रीज का है। मंगल 12th हाउस में बैठा हुआ है जो कि जुपिटर का 4th और 7th का डिस्पोजिटर है, और जुपिटर हैं भी राहु के साथ। और अब मैं आप लोगों को इस प्रश्न कुंडली का जमक्कुल चार्ट आप लोगों के स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। लग्न का नक्षत्र राइजिंग उत्तरा भाद्रपद आ जाता है और लग्न में ही शनि वक्री बैठे हुए हैं। कविप्पु 6th हाउस में है और 6th हाउस में ही सन और मर्क्यूरी हैं, और जाम प्लैनेट में भी 6th हाउस का संबंध सन के साथ ही बन रहा है। 8th हाउस में जाम प्लैनेट राहु का संबंध बन रहा है, और चंद्रमा पर विशेष गौर करने जैसा है इस कुंडली में। आप देखिएगा तो चंद्रमा 5th हाउस में है, ट्रांजिट चंद्रमा, और जाम प्लैनेट मंगल का उसके साथ संबंध है। और 9th हाउस को देखिएगा तो केतु का संबंध जाम प्लैनेट चंद्रमा के साथ बन रहा है। बुध जो कि मेन प्लैनेट था प्रश्न कुंडली का, वो जाम प्लैनेट्स में नीच का हो जा रहा है, क्योंकि 2nd हाउस मीन के साथ उनका संबंध है। 12th हाउस के साथ वीनस का संबंध है, और जुपिटर 3rd में बैठे हुए हैं, ट्रांजिट जुपिटर, और जाम प्लैनेट में भी जुपिटर 3rd में ही है। फ्रेंड्स, बुध जो कि मेन प्लैनेट बनकर उभरता है प्रश्न कुंडली का, वो हर जगह से कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है। नवमांश के बारे में मैंने आपको बताया, दशमांश के बारे में मैंने आपको बताया। इस कुंडली का यदि षष्ठी अंश और त्रिंशांश देखिएगा तो वहां भी जाकर बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यहां तक कि भाव चलित कुंडली में भी बुध की स्थिति अच्छी नहीं है। अब कविप्पु पर आइए। 6th हाउस में यदि कविप्पु हो तो 6th हाउस रोग, ऋण और दुश्मन, इन तीनों का हाउस है, और प्रश्न के लिए यह बहुत नेगेटिव होता है। रोग, ऋण और दुश्मन तीनों से सावधान रहने की आवश्यकता है ममता बनर्जी को। और यदि ये सत्ता में कंटिन्यू कर जाती हैं तो इनको सत्ता पक्ष का डर तो होगा ही, क्योंकि 6th हाउस में कविप्पु के साथ सूर्य भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी खतरा होगा। 6th हाउस में कविप्पु होने का मतलब है इनके अपने नीचे काम करने वाले लोग इनको धोखा दे सकते हैं। 6th हाउस में कविप्पु का मतलब है कि ममता बनर्जी के स्वास्थ्य में भी परेशानी आ सकती है। और 6th हाउस में बुध फिर से बैठता है जो कि प्रश्न कुंडली का मेन प्लैनेट था, और इस प्रश्न कुंडली का होरा लॉर्ड भी सन है। सन और मर्क्यूरी दोनों का 6th हाउस में कविप्पु के साथ बैठना, और 8th में राहु, चंद्रमा के साथ एक तरफ केतु और दूसरे तरफ मंगल का संबंध, ये बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन है। ममता बनर्जी अपनी मौत खुद मरेंगी, अपने बददिमागी के वजह से, अपने एक्शंस के वजह से ये धीरे धीरे खत्म होंगी। और इन्होंने जो एक छवि बनाकर रखा है, सफेद साड़ी, खद्दर की साड़ी और हवाई चप्पल, ये छवि तार तार हो जाएगा और इनका सफेद वस्त्र दागदार हो जाएगा। इनको जेल यात्रा भी करना पड़ सकता है। और बुध की स्थिति कमजोर होने का मतलब है कि यंगर मेंबर्स ऑफ द पार्टी की वजह से ये परेशानी में आएंगी। बुध का मतलब होता है फ्रेंड्स युवराज। अब ममता बनर्जी का अपना तो कोई पुत्र नहीं है, तो यहां शायद अभिषेक बनर्जी की तरफ इशारा हो। अभिषेक बनर्जी की कुंडली मेरे पास नहीं है, इसलिए
बहुत ज्यादा विश्वास के साथ तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि उनके साथ क्या होगा, लेकिन यहां पर प्लैनेट्स को देखकर ऐसा लगता है। और इसमें इनकी पार्टी के दूसरे यंगर मेंबर्स भी हो सकते हैं। ममता बनर्जी को अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अपने नीचे काम करने वाले लोगों के साथ अपने संबंधों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इनको हो सकते हैं और जिसके वजह से इन पर बहुत लांछन लग सकते हैं। 6th हाउस में जब कविप्पू हो और साथ में मर्क्यूरी आ जाए तो डेब्ट्स या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते व्यक्ति की बदनामी होती है। यदि कविप्पू के साथ 6th हाउस में सूर्य आ जाता है तो फिर इस व्यक्ति को राजकारण से, राजपक्ष से भय होता है। और ये पूरा जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है फ्रेंड्स, 8th हाउस में राहु, चंद्रमा का जो संबंध बन रहा है मंगल और केतु के साथ, ममता बनर्जी अपने कार्यों के वजह से अनपॉपुलर होंगी। एक बार जब इस कुंडली के चंद्रमा के अवस्थाओं को देखिएगा तो वो अपनी कहानी आपको खुद कहेंगे और इस बात को और भी ज्यादा रीइंफोर्स करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। ये जो चंद्रमा है ये 19th चंद्र क्रिया में आता है, जिसका डिस्क्रिप्शन है हैविंग अ गुड कैरेक्टर। और इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, चाहे आप उनके सपोर्टर हो या नहीं। ममता बनर्जी एक महिला हैं और उनके चरित्र पर आज तक कोई भी लांछन नहीं लगा है। ये 11th चंद्रवेला में आता है। 11th चंद्रवेला का डिस्क्रिप्शन है कंज्यूमिंग पॉइजन एंड कमिटिंग सुसाइड। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है और जिस तरीके का कॉम्बिनेशन है, जो मैंने कहा बहुत लीथल कॉम्बिनेशंस है, उनके साथ यदि इसको आप मिलाकर देखिएगा तो ये भी एकदम स्पष्ट इशारा है कि ममता बनर्जी पॉइजन खुद खाएंगी और सुसाइड खुद करेंगी। इनको कोई मारेगा नहीं। ये मैं उस स्थिति की बात कर रहा हूं यदि इनकी सरकार को नहीं गिराया जाए तो कुल मिलाकर जो ये परिस्थितियां बन रही हैं ये ममता बनर्जी के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। होरा लॉर्ड भी सन है और होरा लॉर्ड प्रश्न कुंडली में भी 12th हाउस के लॉर्ड हैं और इस जमक्कुल चार्ट में भी 6th हाउस में कविप्पू के साथ बैठे हुए हैं और ऑपोजिशन के हाउस के लॉर्ड हैं, 7th हाउस के लॉर्ड हैं। तो ममता बनर्जी के लिए आगे आने वाला समय बहुत ही कठिन समय होने वाला है फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का यह वीडियो लॉजिकल लगा होगा, तार्किक लगा होगा। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।